स्टार्ट करें। ओहो, कल एग्जाम दिया था आप लोगों ने, पास किया? शेखी, पास किया? 360 के ऊपर मिलने को कहते हो? कितना आ रहा है? 100? 2 क्वेश्चन गलत कर दिया, क्यों? शर्म नहीं आता? टोटल कितना आया? इससे क्या होगा? केमिस्ट्री में कितना आया? 0 से 90 तक पहुंचे आप? तो 0 मिला था तुझे नीट में? पिछले टेस्ट में 0 मिला था, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया। So proud of you। अभी इसमें किया 90 आया मन तक तो ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बनाया, बढ़ जाएगा। ग्रिप कर लिया केमिस्ट्री, चलो अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ है तो निशान साहब भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी टीचर जिसके पास जाना है करके कर लो। तेरा कैसा है? हाँ, তোর কত হয়েছে? তুই দিয়েছিস তো কালকে পরীক্ষা, কেমন হলো? 140, 117। ঠিক আছে, পরেরটা তুমি ভালো করে জয়েন করলি একদিন আগে। এই, তুই দিয়েছিস পরীক্ষা? কত পেয়েছিস? দুটো, তিনটে ভুল, একটা ছেড়েছিস, আর টোটাল মিথ্যা কথা বলছিস। 150 নম্বর ভুল করলি, 160 নম্বর বাজে বাজে ভুল হয়ে গেছে, তোকে বাজাবো আমি। तुमने दिया? कैलकुलेशन नहीं किया? क्यों? तुम लोगों के बैच के लिए मैं नेक्स्ट एग्जाम से तुम लोगों का मार्क्स इवेल्युएट करूंगा। आज इस एग्जाम तक मैंने नहीं किया, उन लोगों का इस एग्जाम से करूंगा, और तुम लोगों का 1 जनवरी वाला एग्जाम से करूंगा। 8 का ना, नेक्स्ट एग्जाम तो 1 जनवरी হওয়ার কথা। शायद 21 डेज, আজকে থেকে 21 डेज ক্যালকুলেট করলে 8 হয়, হতেই পারে না। विष्णु सर, एक बार देखिएगा चेक करके कि
আবার জয়েন কর, লিখ তো গ্রুপে there was a disturbance in the network, ऐसे ही लिख दे। प्लीज ज्वाइन फास्ट। तुम लोग भी बोले नहीं बेटा? हाँ लिख दे एक बार। तू अच्छे बारे लिख दिया। सम ऑफ द इनर सेल मास आर आल्सो कॉल्ड द स्टेम सेल्स। ठीक है, तो ये वाला दिस इज द विच स्टेज? 16 सेल स्टेज। So this is the 16 cell stage. ठीक, now a very important statement. आजा आजा आजा, हाँ बोलो। জুমেই করা যাবে, এখন তো হয়নি, ওটা কথা বলতে হবে। আজকে করার সময় দেখছি। तो 16 सेल स्टेज, तो 16 सेल स्टेज में आपको क्या मिला? आउटर सेलुलर लेयर एंड इनर सेल मास दोनों मिला आपको। अब जरा देखिए ये जो फोटोग्राफ है दैट इज 16 सेल स्टेज। अब इसके बाद क्या? अच्छा हाँ, याद रखिएगा एज लॉन्ग एज द जोना पेलुसिडा इज देयर, जोना पेलुसिडा जब तक रहेगा तब तक इम्प्लांटेशन को वो प्रिवेंट करेगा। As long as zona pellucida remains intact, the implantation will be prevented. Why? Because zona pellucida is calcified. It has lost its stickiness. So, zona pellucida जब तक है तब तक implantation नहीं होगा। तो लिखते हैं the presence of zona pellucida inhibits implantation. The presence of zona pellucida inhibits implantation. ठीक, कोई डाउट? तो जोना पेलुसिडा हैव टू बी डिजेनरेटेड फॉर इंप्लांटेशन, समझे? सो इसके बाद क्लीवेज कंटिन्यूज एंड ZP degenerates. The zona pellucida degenerates to form. जोना पेलुसिडा डिजेनरेट करेगा तो क्या होगा? अब ये 16 सेल के बाद 32 सेल स्टेज होगा। उसमें क्या होगा देख, ये जो आउटर लेयर है जोना पेलुसिडा भी नहीं है, उसके बदले में आउटर सेलुलर लेयर जो था वो ओरिएंट करेगा as a layer. Outer cellular layer will orient themselves. समझ में आया? OCL है ना, outer cellular layer, they will orient themselves. समझ में आया? To form a layer. And there is the presence of inner cell mass. समझ में आया? तो inner cell mass. अब outer cellular layer जब orient करेगा, OCL attaches with each other, attach with each other to form a layer, and this layer is called the trophoblast. This layer is called the trophoblast. Am I clear? Am I clear? किसी के मन में कोई भी दुविधा? So this layer is what is called the trophoblast. Okay? And the inner cell mass is this one. This is the ICM, inner cell mass. And you see there is a cavity that has been formed. This is a cavity. This is a cavity formed. देखो, क्योंककि inner cell mass एक तरफ है तो एक तरफ बड़ा सा एक cavity है. And this cavity is called the blastocyst cavity, preferably called the blastocele, C-O-E-L. Coelom से cavity. So this is called, it is called the blastocyst cavity, preferably called the blastocele, blastocele. Am I clear? This cavity is there. And this is the point. So ये structure का नाम है blastocyst. So the stage is called the blastocyst stage. Am I clear? So after 16 cell stage, सीधा blastocyst stage, and in this stage only the implantation will occur. In this stage, at this stage the implantation occurs. तो जरा देखें हम लोग implantation किस तरह से होता है. Everyone look here, my dear. इस पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये.
जरा देखिएगा, एंडोमेट्रियम, वाह क्या करा मैंने। लुक हियर द टिपिकल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन दैट हैज ऑकर्ड। इम्प्लांटेशन का अप्रोच देख, एंडोमेट्रियम का आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर मोस्ट लेयर। तो आउटर लेयर इम्प्लांटेशन इस तरह से हो रहा है कि आउटर लेयर जो है वो पुश कर रहा है, माने द ब्लास्टोसिस्ट इज पुशिंग द आउटर लेयर, और आउटर लेयर और इनर लेयर्स आर मर्ज्ड टुगेदर। देख, आउटर लेयर इनर लेयर्स आर मर्ज्ड टुगेदर एंड द ब्लास्टोसिस्ट इज हियर। बुझते पेरेছো? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आया? So this kind of implantation is called discoidal appearance. देखो discoid, disc-like, disc-like. So this is discoidal. इसीलिए प्लेसेंटा का, इसी से तो प्लेसेंटा बनेगा। तो प्लेसेंटा का एक कैरेक्टर है डिस्कॉइडल। प्लेसेंटा का एक कैरेक्टर जो है वो है डिस्कॉइडल। समझ में आया? So implantation का जो नेचर है that is like this. So it's a discoidal appearance, my dear. तो इस जगह पे, ये जो जगह है my dear, this is discoidal. Discoidal. The type of implantation is like a disc. बुझते पेरेছো? अब देख, ये जो है, these are the inner cell mass. एनसीईआरटी का फोटो देख, एनसीईआरटी का फोटो देख, इनर सेल मास दिखा आपको, एंड ये इनर सेल मास का काम है। देख, ध्यान से देख एवरीवन, ये इनर सेल मास का काम है। जब इंप्लांटेशन होगा तो मैक्सिमम स्टिकीनेस ऑफ द यूटेरस, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन इज मैक्सिमम। ये साइकिल में 14 डे अगर होगा फर्टिलाइजेशन, तो 21st डे, 7 days after fertilization, 7 days after fertilization has to be implanted, right? तो 19 से लेके 21st डे में प्रोजेस्टेरोन का लेवल इज हाईएस्ट एंड द मैक्सिमम स्टिकीनेस। सो मैक्सिमम म्यूकोसा, स्टिकीनेस है तो म्यूकोसा है ना, and these cells will absorb the mucus and the mucus will fill up this cavity. So this is the absorbed mucus from the endometrium by the inner cell mass, ICM. बुझते पारले? And that is filling the blastocyst cavity. This has filled the blastocyst cavity. इसका फोटोग्राफ एक बार ध्यान से देखें हम लोग। तो इम्प्लांटेशन, देखते हैं। This is implanted, my dear. Cells, inner cell mass, and here is the absorbed mucus. देखो, क्लियर? बहुत सारे लेबलिंग्स है, उसके बारे में धीरे धीरे करते हैं। पहली बात तो यह है आउटर सेल मास, जो कि एक्चुअली अटैच किया है। दिस इज नाउ कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट। इसको तो हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, माय डियर। डन? हाँ, हाँ, तो उससे क्या है, इससे रिलेशन कहां है? हाँ, तो ZP3 बताया था ना मैंने, याद है ना? चल, तो ट्रोफोब्लास्ट हो गया। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या है? आउटर सेलुलर, ये जो सेलुलर लेयर अभी ट्रोफोब्लास्ट बना है, एंड विद दिस ट्रोफोब्लास्ट ओनली दिस इज इम्प्लांटेड। हो गया। अब देख, अब ध्यान से सुन, ये जो है वो है एब्जॉर्ब्ड म्यूकस, तो दिस इज द एब्जॉर्ब्ड म्यूकस।
हो गया. This is the cells of the inner cell mass. Right? From this the embryo will be formed. And these are the cells of inner cell mass. ध्यान से देख, these inner cell mass, these cells, ये जो cells है of the inner cell mass, these ICM are attached to the trophoblast. That these cells are attached to the trophoblast. ये सब trophoblast से attached हुआ है ना? These are called, these inner cell mass which are attached to the trophoblast are called the cells of RAUBER, cells of Robber. So which are cells of Robber, my dear? Those inner cell mass which are connected to the trophoblast are called the cells of Robber. Finished. So which are cells of Robber? The cells of the inner cell mass which are connected to the trophoblast are called the cells of Robber. ध्यान दीजिएगा. Am I clear, my dear students? So the cells of inner cell mass which are connected to the trophoblast are called the cells of Robber. Finished? अब ध्यान से देख, इस जगह से embryo बनेगा. So this is the embryonic pole. This can be called, this region, this entire region can be called the embryonic pole, क्योंकि यहां से embryo बनेगा. So embryonic pole, and from this region embryo will not be produced, so we can call it aembryonic pole. क्योंकि এই জায়গা থেকে embryo তৈরি হবে না, embryo will not be formed from that region, that is called aembryonic pole. ठीक, चलो एक तरफ हो गया embryonic pole, एक तरफ हो गया aembryonic pole. अब देख, तो embryonic pole क्या नो, why it is called the embryonic pole? अगर ये assertion है, इसका reason क्या होगा? From these cells of ICM, embryo will be formed. From some of these, embryo will be formed. Am I clear? ठीक, ठीक, समझ में आया? अब देख, ये जो इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन क्या था? इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन क्या था? अटैचमेंट ऑफ blastocyst to the inner lining of the uterus 7 days approximate है after fertilization. राइट? तो इसीलिए in a 28-day cycle, अगर 14th day is the day of ovulation, और अगर day of ovulation is the day of fertilization, तो 14 day में ही fertilization होगा, and therefore my dear 21 day is the approximate day for implantation because 14 plus 7. Clear? हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये बन गया implanted structure. ठीक है? अब ये implantation, ये फोटो एनसीईआरटी में है, लेकिन इसके बाद कुछ सब्सिक्वेंट फोटोज है जो आपको करना पड़ेगा. ठीक है? जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आया था 2018 में. समझ में आया? तो हम आपको बताएंगे वो सीक्वेंस क्या है. थोड़ा चीजें, कुछ चीजें याद रखनी है. इतना तक एनसीईआरटी में फोटोग्राफ में दिया हुआ है. समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनते हैं. चलिए एक और चीज के बारे में बात करेंगे. एट जनवरी को ही टेस्ट है. 21 + 8 हो गल ना पहले. মেজর फिर भी আমি বানিয়েছি, কিন্তু আমি ভুলে গেছি. तो इतना याद थोड़ी ना रहता है. कुछ तो रीजन होगा. और जनवरी बोले.
ওদের পরীক্ষা তো 1 জানুয়ারিতে আছে, 1 জানুয়ারি ডিক্লেয়ার্ড হলিডে বলে। खुश हो गया वो। ठीक है, देखिए अभी इंक्वायरी बिठाया, चलो ठीक है, हो गया, ये डन हो गया माय डियर, प्रोसीड करें। नहीं वो खुश हो गया, রাস্তাতে দেখতে পেলে আমার ড্রাইভারকেও কিন্তু বলা আছে, জানিস তো তোরা যদি এখান থেকে গিয়ে नीचे जाके आप लोग बदनामी करता है तो मेरा ड्राइवर को बोला हुआ है एकदम खींच के तमाचा, और अगर नहीं मारेगा वो तो मुझे खबर देने के लिए बोला, मैं मारूंगा। मर्सिडीज ई क्लास है उधर रखा हुआ है। मर्सिडीज ई क्लास बच के रहेगा, क्योंकि उसका इरादा तो दूसरा है। जिस दिन ड्राइवर उसको डांटेगा उस दिन मेरा गाड़ी का लीक कर देगा वो, इसीलिए तो गाड़ी का नाम नहीं बताया। क्या तुम, चलो कैन वी प्रोसीड अब। देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट हैपन आफ्टर दिस। देव प्रसाद मन दिए सुनो, देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट हैपन आफ्टर दिस, and the changes that are happened after this, that is called, there is a peculiar movement, mark my words, there is a peculiar but characteristic movement of the inner cell mass after implantation। inner cell mass जो आप देख रहे हो जिससे एम्ब्रियो बनेगा, उसका एक peculiar movement होगा, that is called morphogenic movement। so इसके बाद what happens, there is a characteristic movement of the inner cell mass, this is called morphogenic movement। इसको कोई कोई मॉर्फोजेनेसिस भी कहता है, लेकिन ठीक है, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट इज द करेक्ट टर्म। तो ये इनर सेल मास मूव करके कैसा रहेगा, लेट्स सी। सो ये इनर सेल ट्रोफोब्लास्ट इज देयर। अब इनर सेल मास खुद को ओरिएंट करेगा, पिक्यूलियर ओरिएंटेशन। कुछ सेल्स ऐसे आएगा, कुछ सेल्स ऐसे आएंगे, और ट्रोफोब्लास्ट अभी भी है, समझ में आया? दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, ये तो है ही, और ये सेल उससे छोड़ के ऐसे हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट, एंड दिस इज हाइपो, नीचे है तो हाइपोब्लास्ट। आपको एपीब्लास्ट याद नहीं रखना है बेटा, आपको ना तो हाइपोब्लास्ट याद रखना है, लेकिन लास्ट स्टेज में, लास्ट स्टेप में कुछ चीज है जो आपको याद रखना है, उसके लिए एपीब्लास्ट आपको चाहिए। একটা সেন্টেন্স এনসিইআরটি তে আছে, वो भी दिखाएंगे आपको, टेंशन मत। हो गया, इट्स अ बहुत सारे सेल्स। आप बोलोगे इतने कम सेल्स बनाए सर, बहुत सारे सेल्स, मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, क्लीवेज इज कंटिन्यूइंग, तो सेल्स का नंबर तो बहुत होगा, लेकिन मैंने इतना ही बनाया, ठीक है ना। एंड इन ऑल दिस केसेस क्लीवेज कंटिन्यूज, क्लीवेज इज ऑकरिंग। क्लीवेज कब तक चलेगा, पढ़ाया था, जब तक द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर इज नॉट इक्वल टू द साइज ऑफ सोमैटिक सेल, पढ़ाया था मैंने। जब तक वो नहीं ऑब्टेन होगा तब तक क्लीवेज चलता रहेगा माय डियर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कैसे तुमको सोचना नहीं है, नो वन नोस। ये ओरिएंटेशन, एनामेटा ओरिएंटेशन करे, আবার उन्होंने सेल करे, न्यूमरस सेल्स मल्टीप्लाई करके खुद को ओरिएंट करेगा, और उसी ओरिएंटेशन को मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहा गया है। नो नो नो, देयर इज नो मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन मैं बनाता हूं ताकि आपको दिखा पाए कि ओरिएंटेशन अलग अलग है, इसीलिए। देयर इज नो मेम्ब्रेन माय डियर, देयर इज नो मेम्ब्रेन। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो है ही, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट आर देयर। देयर इज अनदर लेयर ऑफ सेल, ट्रोफोब्लास्ट के एकदम टच करके चलेगा, अनदर न्यू सेलुलर लेयर विल कम। These cells are called the amniogenic cells. These are the amniogenic cells, and this cavity happens to be amniotic cavity.
आपको पता है एमनियोटिक कैविटी बनेगा क्योंकि एमनियन रहता है। दिस इज एपीब्लास्ट, दिस इज हाइपोब्लास्ट, दिस इज हाइपोब्लास्ट। हो गया, डन। अब इसके बाद सिमिलर अरेंजमेंट होगा नीचे की तरफ भी, जैसे कि ऊपर वाला था। इसमें सब न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, पढ़ाया था मैंने। तो ये जो सेल है, अब ये सेल मैच्योर हो गया। एमनियोजेनिक जो था वो चेंज होके एमनियोटिक बन गया, मतलब मैच्योर हो गया। और वो कैविटी भी एमनियोटिक कैविटी ऑलरेडी पढ़ाया। और नया सेट ऑफ सेल्स आएगा नीचे की तरफ ट्रोफोब्लास्ट को टच करते हुए। These are the amniotic cells. This is the amniotic cavity. This is the epiblast. This is the hypoblast. This is the trophoblast. है ना? And the new set of cells जो आया, these are called the endodermal cells. Endodermal cells of yolk sac. और ये बन गया यॉक सैक। एमनियोटिक कैविटी भी बना, यॉक सैक कैविटी बना, किंतु इन केस ऑफ ह्यूमन यॉक विल नॉट बी देयर। वो तो कल बताया था, पिछले दिन बताया था मैंने। तो अब देख, ये जो बना, बोर्ड की तरफ एक बार देख, ये जो एमनियोटिक सेल्स है अभी और ये जो एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द यॉक सैक है अभी, ये दोनों करीब आएगा, लिविंग द ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट को छोड़ के एमनियोटिक सेल्स एंड एंडोडर्मल सेल्स विल कम क्लोजर। तो ट्रोफोब्लास्ट को छोड़ देगा, ट्रोफोब्लास्ट की जगह है, एक गैप हो जाएगा और ये करीब आ जाएगा। समझ में आया? उससे तो एम्ब्रियो बनेगा अल्टीमेटली। तो ट्रोफोब्लास्ट इज हियर। ठीक है, these are the cells। अब देखिए, ये भी है। तो सभी का नाम अगर हम लोग करते हैं तो दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, दिस इज द एमनियोटिक सेल, amniotic cells, this is the endodermal cells of yolk sac, this is the hypoblast, ये हो गया एपीब्लास्ट, है तो। और ट्रोफोब्लास्ट और इसके बीच में एक स्पेस हो गया, देखिए यहां से एम्ब्रियो बनेगा। इफ दिस इज द साइट फ्रॉम विच एम्ब्रियो विल फॉर्म, यहां से एम्ब्रियो बनेगा, सो एम्ब्रियो विल फॉर्म फ्रॉम दिस, है तो। सो दिस पर्टिकुलर स्पेस बिटवीन द ट्रोफोब्लास्ट एंड द एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मेसोडर्म नहीं, सिलोम। सिलोम माने कैविटी, स्पेस। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजियन और द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्पेस और द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, एक्स्ट्रा माने beyond the embryo. Am I clear? So this is the extra embryonic coelom or the extra embryonic space. Okay, जल खावा, ATP का तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट, पानी पी। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्पेस और द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। अब क्या होगा, ध्यान से देख। अब ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसी जो सिलोम है, इसको सिलोम हम लोग क्यों कहेंगे बेटा, इसको सिलोम हम क्यों कहेंगे, इसका रीजन है माय डियर,
that this space will be lined by mesodermal cells. सीलोम तो हम लोग उसी को कहते हैं that is lined by mesodermal cells. So this will be lined by mesodermal cells. This will be lined by mesodermal cells. Am I clear? So this will be lined by mesodermal cells. तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट फोटोग्राफ आएगा, ये हो गया. This is done. ये तो ऑलरेडी करा है हम लोगों ने. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज, ये जो लाइन है, ये जो पार्ट है, दिस विल बी लाइंड बाय मेसोडर्मल सेल्स. And these mesodermal cells are of two layers. एक outer towards the trophoblast, एक inner towards the embryo. और दोनों mesodermal cells का दोनों नाम है जो आप भूल सकते हो, which you can forget. This is called the somatopleuric extra embryonic mesoderm. This is SPLANCHNO, splanchnopleuric extra embryonic mesoderm. And let me tell you, this is trophoblast. This is trophoblast. And my dear student, ये दोनों मिला के, ट्रोफोब्लास्ट और सोमेटोप्ल्यूरिक, ये दोनों मिला के बनाता है माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज कॉल्ड कोरियन. एग्जाम का क्वेश्चन 2018. ठीक है. और एनसीईआरटी में भी कोरियन वर्ड यूज हुआ है प्लेसेंटा का डेफिनेशन में. कोरियोनिक विलाई, इंटरडिजिटेशन बिटवीन द कोरियोनिक विलाई, है ना. द कोरियोनिक विलाई इंटरडिजिटेट्स बिटवीन द डेवलपिंग fetus and the uterine body, maternal tissue, to form the structure and functional unit, है ना. The chorionic villi interdigitates, है ना, to form the structural and functional unit between the developing fetus and the uterine tissue. है तो रे, called placenta. Write the sentence NCERT. This is the definition of placenta. चलो, এই chorionic villi टाइप finger like projections करे. That is called interdigitation. ठीक? चलो, ये बन गया. कोई दिक्कत किसी को? नाउ लास्ट फोटोग्राफ, लास्ट, उसमें क्या है भालो करे देखा. ये जो एपीब्लास्ट, अच्छा इस पता तो है ये सब एपीब्लास्ट है. ये दिस एपीब्लास्ट, ये तो पता ही है. दिस एमनियोटिक सेल, क्या ये सब तो पता है आपको. अभी एमनियोटिक सेल, इसी का सिक्रीशन आएगा इधर, एमनियोटिक फ्लूइड, है ना. एंड दिस इज endodermal cells of yolk sac. কিরে উজ্জয়িনী, হ্যাঁ এগুলো পড়েছিস কোনোদিনও? কি যে বলে, कैसा मजाक करते हैं. And this is the yolk sac. किरे yolk नहीं है, yolk नहीं है लेकिन sac है. हाँ छोटा फुल शांति के बताओ. एनसीईआरटी थोड़ा थोड़ा देख यॉक सैक, पेज नंबर 53 54 53, देख नीचे 53, नीचे 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 देख यॉक सैक. उधर ही उधर ही उधर ही. तेरे लिए 53 नहीं है शायद, हाँ 37 होगा. देखा यॉक सैक, देखा वही यॉक सैक. ছোট তো হবেই, এটা ম্যাচিওর করতে করতে তো ছোট হয়ে যাবে ওটা. ये जब मैच्योर करेगा तब तो वो छोटा हो जाएगा. समझ में आया? চলো এত পরে, উফ চায়ের ভীষণ দরকার ছিল. পাঁচই চিজ রে, গ্লাসটা তুই আমার ঘরে রেখে দে, গ্লাস লাগবে না আমার. চা কিন হাজার কেন?
ভালো করে দুধটা ফোটায় না কেন বল দেখি। तुझे আমার ছবি আঁকবি? ও আচ্ছা যাই ছবি আছে, बताया नहीं अच्छा चुपचाप था। আমি আবার কথা, আমি যখন পড়াবো তারপরে কোনো কোশ্চেন থাকবে না। লেট মি কমপ্লিট। নখ খাচ্ছিস কেমন? আমার পায়ে কিছু জমেছে, খাবি? কেটে রেখে দেবো, মেয়োনিজ দিয়ে দেবো আর সোয়া সস। ক্যাটারপিলার বলছে আমার দাঁতগুলো এত বড় বড়। চুপ কর, দাঁড়া আরেক চুপ খাবো, তারপর বিরক্ত করিস না। ও ভাবছে কি পাগল লোক। আসলে हाई वोल्टेज डिस्कशन है ना। चाय का चुस्की हो गया, अब शुरू करें। hey, कैन वी स्टार्ट? लास्ट फोटो माय डियर, देख ये जो एपीब्लास्ट है बेटा, ध्यान से देख इधर एवरीवन। ये जो एपीब्लास्ट है, दिस विल पुश द एमनियोटिक सेल अबव। क्या करेगा? वो एमनियोटिक सेल को ऊपर की तरफ पुश करेगा, धकेलेगा और एक स्पेस क्रिएट करवाएगा, समझे? वो वैक्यूम जैसा स्पेस हो जाएगा जिसमें ये जो मेसोडर्मल सेल्स है ना रेड कलर का, ये ऐसे करके इन्वेजिनेट करेगा और ये उसको पुश करके एक लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। लिप लाइक स्ट्रक्चर, समझे ना? देखते हैं कैसे। ठीक, एंड द मेसोडर्मल सेल्स जो कि इधर था, अब गोल गोल बना देते हैं। ये तो मेसोडर्मल सेल्स था ना, स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स। ये क्या करेगा? समझे? ये घुस गया अंदर, ये घुस गया अंदर। दिस इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन। क्या कहते हैं? बाहर से अंदर आया, इन्वेजिनेशन। एंड लुक एट दिस। अच्छा, दिस वन इज व्हाट? कोरियन। अब ट्रोफोब्लास्ट नहीं बोलेंगे, दोनों मिला के कोरियन बन गया ना। दोनों मिला के तो कोरियन बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोरियन, एनीथिंग दैट इज कोरियोनिक रेफर्स टू प्लेसेंटा। एनीथिंग दैट इज कोरियोनिक, ऑल which are chorionic refers to placenta। कल के कोई absent করবে না, খুব important class। all anything which is referred to as chorionic मतलब placenta। anything which are chorionic refers to placenta। समझ में आया? तो कोरियन बन गया, ठीक। and look here my dear students, this one is called the cleft। ये जो cleft, this is called the primitive streak। This is called the primitive streak। बाकी पॉइंट्स तो आपको पता है। Invaginated mesodermal cells, invaginated mesodermal cells, ठीक। and this is called the primitive streak my dear students। ध्यान दे, these are called the primitive streak and this primitive streak matures to give you, ये मैच्योर करके क्या बनेगा? matures to form the allantois, and this will mature to form, develops into the umbilical cord। Am I clear?
तो ये प्रिमिटिव स्ट्रिक डेवलप करके बनेगा एलेंटॉइस, फ्रॉम देयर एलेंटॉइस से बनेगा अम्बिलिकल कॉर्ड, माय डियर स्टूडेंट्स। एंड अभी तक जो हुआ, घटनाएं घटी, सबसे पहले देख, अगर एपीब्लास्ट नहीं बनता तो प्रिमिटिव स्ट्रिक नहीं बनता, है ना। जब तो ये है दिस एपीब्लास्ट, ये क्या है एपीब्लास्ट, दिस एपीब्लास्ट इज नाउ कॉल्ड, मतलब पहले से ही वो वही था लेकिन अभी उसका नाम क्लासिकली दिया गया, दैट इज एक्टोडर्म। यही एक्टोडर्म बना। तो एपीब्लास्ट नहीं रहेगा तो एक्टोडर्म नहीं बनता। तो एपीब्लास्ट वाज द फोरफादर ऑफ द एक्टोडर्म, सो हम लोग कहेंगे एक्टोडर्म फॉर्म्ड फर्स्ट, देन वी सी एंडोडर्म, देखो, एंड देन वी सी मेसोडर्म। गॉट इट? सो एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म, इससे बनेगा एंडोडर्म। तो अभी आपको पता चल गया कि यॉर्क सैक कहां से बनता है, यॉर्क सैक इज एंडोडर्मली डिराइव्ड। एंड एमनियोटिक सैक कहां से डिराइव्ड, दिस इज एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म और ये भी एक्टोडर्म। तो एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सेल्स, अब देख कहां गया, मेसोडर्मल सेल्स, दीज आर द मेसोडर्मल सेल्स। अब ध्यान से सुन, यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ectoderm is called epiboly and formation of endoderm and mesoderm is called emboly. So formation of ectoderm is called epiboly and the formation of endoderm and mesoderm together is called emboly. And the sequence of formation अगर हम लोग सोचते हैं एनसीईआरटी का, लाइन पेज नंबर 54 या तो 38 निकालो, लास्ट सेंटेंस, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द जर्मिनल लेयर्स, अगर हम लोग इस तरह से सोचें माय डियर स्टूडेंट्स, तो इट विल बी सबसे पहले एक्टोडर्म, क्योंकि एपीबॉली पहले, एपीब्लास्ट पहले ही बन चुका था, एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, एंड फाइनली एनसीईआरटी लाइन मेसोडर्म फॉर्म्स इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, राइट? तो दिस इज द सीक्वेंस एंड अप टू दिस, ये जो बना, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इट विल बी ऑर्गेनोजेनेसिस, जो पेज नंबर 54 का सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप्स at the end of the first trimester, almost the entire almost the major organs develop, all the major organs develop at the end of the first trimester. লেখা আছে দেখো, তারপরে দেখো 5th month, তাই না, তারপরে দেখো 6th month, তারপরে ফুল টার্ম বেবি। কিরে, पेज नंबर 54 याद करना है, मैच द कॉलम है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई भी लेवल का सवाल हो सकता है, पेज नंबर 54 का सेकंड पैराग्राफ से हर एक वर्ड याद रखना है। Am I clear? तो इसके बाद होता है ऑर्गेनोजेनेसिस एंड अप टू दिस इज व्हाट इज कॉल्ड gastrulation. Up to this is what is called gastrulation. Am I clear? बताइए किसी के मन में कोई भी दुविधा, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ? These are the post fertilization changes. These are the post fertilization changes. এপিব্লাস্ট ওপর দিকে যায় বলে ওই শেপটা নেয়, আর ওই শেপটা থেকে ইয়ে তৈরি হয়, কি বলে, অ্যালান্টয়েস, ওটা থেকে अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप। तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज एक्टोडर्मली डिराइव्ड, क्योंकि एपीब्लास्ट থেকে আসছে। ये तो समझ में आ ही गया पिक्चर देख के। चलो, झट से करा दिया, कुछ भी नहीं पढ़ाया, बहुत सिंपल, वेरी वेरी इजी। কি হলো উজ্জয়িনী ম্যাডাম, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা,
इसके एक जबरदस्त फोटो खींच और ग्रुप में डाल दे। বল, গো জলদি। বাবা, মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধ শেষ করলি। তাড়াতাড়ি যা, জলদি যা। কি হলো, কি শুনছিস বাবা? রেডিও? किसको? मुझे? ओ अच्छा अच्छा। ओ কিছুদিন আগে আমাকে একটা যেন দাঁড়া দেখি তো, সায়নদীপ বোধহয়, কে একটা যেন একটা পাঠিয়েছিল। এই এখনই মনে পড়ে গেল, এই সায়নদীপ 690 এমস কল্যাণী। স্যার তুমি রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমেরটা 12 এর ডিটেলে পড়িয়েছিলে বলে দুদিন পরে जनरल एम्ब्रायोलॉजी एग्जाम में पास করে যাও। ये लिखा है। उसके बाद मैं कुछ रिप्लाई तो थम्स अप ही दिया है, मैं थोड़ा बिजी था। वो 26 रैंक का 2022 में जो अभिलाष को क्या मिला, देख देख, अभिलाष को मम्मी भेजा है, ये देख, गोल्ड मेडलिस्ट इन फार्माकोलॉजी, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ मेडिकल कॉलेज से। एक ही बंदा होता है, तो जितने लोगों को 75% के ऊपर मार्क्स मिलता है उसका फिर एग्जाम होता है गोल्ड मेडल एग्जाम। ही गॉट गोल्ड मेडल। सेकंड शेजुटी घोष फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, अदिति भट्टाचार्य सेकंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। तीनों को ये दिया गया, लेकिन उसको गोल्ड मेडल मिला। समझ रहे हो? once a star always a star, আমি বলি না কথাটা, দেনো। কি হলো? क्या ग्रुप में डाल दिया बेटा? सही से फोटो उठा के, हाँ एचडी में डाला ना? हो गया? हाँ जल्दी आ जा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हम लोगों ने खत्म किया। तो हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा, हम लोगों ने क्लीवेज का डिस्कशन करा एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ा। सो वी हैव स्टडीड ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, है ना? अभी फिलहाल डन हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों का टारगेट ऑफ डिस्कशन इज प्लेसेंटा। जबरदस्त डिस्कशन आएगा उसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और प्लेसेंटा का जो एक फोटोग्राफ मैं बनाऊंगा उससे एनसीईआरटी का हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, हर एक लाइन। अच्छा तो बोलो ভাবছিলাম, अच्छा है এই ছবিটা, इस पिक्चर को देख, इस पिक्चर को देख। ए हावड़ा, मोबाइल टिपचिस केन? वो ले लेंगे हम, मेरा 2 है, तीसरा हो जाएगा। इधर देख, ये इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ। ये ब्लू कलर क्या है? इनर सेल मास। तो इनर सेल मास जहां से एम्ब्रियो बनेगा दैट इज टुवर्ड द मदर एंड द फ्लूइड इज टुवर्ड्स द फीटस। यही से फीटस बनेगा, मतलब टुवर्ड्स द मदर। छोड़ दो, इनर सेल मास जो है वो टुवर्ड्स द मदर, ठीक है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स या तो कोरियन बना, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो कोरियन है जब ये डेवलप करेगा इनटू द प्लेसेंटा टू फॉर्म द प्लेसेंटा, तो ये कोरियन जो है दिस विल डिवाइड इनटू 2 लेयर्स। ध्यान से सुन मैं क्या कह रहा हूं। ये जो कोरियन है, मैंने कोरियन आई शुड कहा, मतलब कोरियन बोलो या ट्रोफोब्लास्ट बोलो, अभी तो दोनों सेम है, मर्ज कर गया। सो ये जो कोरियन है माय डियर, दिस या तो ट्रोफोब्लास्ट है, दिस डिवाइड्स इनटू 2 लेयर्स। एम आई क्लियर? द आउटर लेयर इंटरडिजिटेट्स, इनर लेयर इंटरडिजिटेट नहीं करता। एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड इंटरडिजिटेट, मतलब क्या? इसको कहते हैं सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं? SYNCYTIO, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट।
So that is the syncytiotrophoblast. And this one is the cytotrophoblast. So ये trophoblast divides into two. One is syncytiotrophoblast that is present towards the mother, and the cytotrophoblast is present towards the fetus. समझ में आया? These are basically the two layers of the placenta. और बीच में एक लेयर आएगा. तो प्लेसेंटा जो है वो बच्चा निकलने के बाद प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है. सो प्लेसेंटा का एक एसेंशियल कैरेक्टर है डेसिडुएट. डेसिडुअस ट्री मतलब क्या? जिसका पत्ता गिर जाता है फिर से बनता है. वेरी मच इन द सेम वे प्लेसेंटा बच्चा डिलीवरी के बाद बाहर. सो डेसिडुएट इज अनदर कैरेक्टर. क्या ना बोल रहे हैं सर? व्हाई अनदर कैरेक्टर? बिकॉज एक तो ऑलरेडी बता दिया डिस्कॉइड, बताया ना. सो बेसिकली देयर आर 4 कैरेक्टर्स. डिस्कॉइडल, डेसिडुएट, एक और पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड हिमोकोरियल, जिसके बारे में कल बात करेंगे. एंड अनदर पॉइंट, इट्स अ टेम्पोररी एंडोक्राइन ऑर्गन. rather we should say temporary endocrine is correct, rather we should also say temporary mixed organ, mixed gland, क्योंकि उससे एंजाइम्स भी निकलता है. गॉट इट? गॉट इट? किसी के मन में कोई भी दुविधा? तो प्लेसेंटा का कुछ कैरेक्टर्स है, लेकिन वो कैरेक्टर पढ़ने से पहले एनसीईआरटी को अगर समझना है हमको, तो डेफिनेटली यू शुड स्टडी अ पर्टिकुलर फोटोग्राफ व्हिच आई विल डू राइट नाउ. हम लोग करेंगे, ठीक है? पहले बोलो ये हो गया ना. इसको लेके किसी के मन में कोई भी शंका नहीं है? ये डन हो गया. इसको इरेज करें हम लोग. कोरी चलो. अच्छा, मजे का बात एक चीज, इसका जो साइज है और इसका साइज सेम, क्योंकि जब तक जर्मिनल लेयर नहीं बनेगा तब तक गैस्ट्रुलेशन खत्म नहीं होगा, तब तक क्लीवेज चलेगा. क्लीवेज खत्म होने के बाद the organogenesis will start, और उस दौरान साइज बड़ा होना चाहिए. ग्रोथ फेज will start. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनिशियली ये जो टोटल प्रोसेस चल रहा है, न्यूट्रिशन कहां से मिलता है बेटा? किधर कोई होता है वहां पे न्यूट्रिशन? नंबर 1, जब तक सेकेंड पोलर बॉडी है तब तक सेकेंड पोलर बॉडी न्यूट्रिशन देगा. लेकिन 8 ब्लास्टोमियर से पहले तो वो डिजेनरेट कर गया. उसके बाद क्या होगा? जब इम्प्लांटेशन हुआ उसके बाद म्यूकस को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द यूटेरस. दैट विल प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर द मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स. मॉर्फोजेनिक मूवमेंट तो है ये सब. तो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट के लिए न्यूट्रिशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द म्यूकोजा व्हिच इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द यूटेरस. That contain the nutrients. Am I clear? ठीक, प्रोसीड करें. ठीक है जी, डन. एव्स এখন পড়ছি না, ছেড়ে দে. हो गया. एव्स के क्षेत्र नहीं, ह्यूमन के कंडीशन में भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लड सेल्स बनेगा वो यॉर्क सैक से बनता है, पता है ना. उसके बाद लिवर, बाद में तो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, है ना. तो पहले तो यॉर्क सैक से ही आता है. एंड उसको क्या कहते हैं? यॉर्क सैक. मेम्ब्रेन ऑफ द यॉर्क सैक इज कॉल्ड द वाइटलाइन मेम्ब्रेन. वाइटलाइन मेम्ब्रेन, सॉरी. यॉर्क सैक से सिंथेसिस ऑफ द ब्लड सेल्स इज कॉल्ड वाइटेलोजेनेसिस. यॉर्क सैक से जो ब्लड सेल सिंथेसिस होता है बेटा, that is called vitellogenesis. बुझली? ठीक है, इरेज करें. मैं ज्यादा पढ़ाना पसंद ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं. मैं किसी को डांटता भी नहीं, ज्यादा पढ़ाना पसंद भी नहीं करता. क्या बोला? हाँ, मजाक तो मैं कभी कभार कर लेता हूँ, हमेशा नहीं. ये सब पढ़ाने में कितना मेहनत होता है पता है? यस सर.
জ্ঞানপাপি আজকে পড়ে ইয়ে ক্লিভেজের এটা দেখে আসেনি ভিডিওটা। Without seeing the video, he came to the class. हंस रहा है, शर्म आना चाहिए। No, sir. এ ভাই আর বুঝতে পারছি না, হাত দেখা যাচ্ছে। একটা ফটো, दिस इज द कोरियोनिक विलाई, समझे ना? दिस इज द कोरियोनिक विलाई। This is the uterine artery. This is the uterine vein. Artery vein converts into vein, and this is the region of the capillaries. ये पिक्चर आप लोगों ने देखा नहीं, टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये पिक्चर के बगैर एनसीईआरटी का फर्स्ट 4-5 लाइन नहीं होगा। एनसीईआरटी भी अजीब काम करता है, कंटेंट दे देता है, उसका रेलेवेंट फिगर भी तो देना चाहिए, नहीं तो बच्चे पजल्ड हो जाते हैं और टीचर स्कूल का पढ़ाता नहीं है। उन लोगों के लिए ये तो जितना नहीं देगा उतना इजी होता है। दे डोंट टीच। मैं तो बिल्कुल स्कूल विरोधी हूँ। स्कूल वाला कॉन्सेप्ट एकदम, रविंद्रनाथ टैगोर थोड़ी ना स्कूल गया। हाँ কিছু বলছিস? रुक जा, मेरा दिमाग मत खा। वाह, डायग्राम डन। डायग्राम ओवर। एनसीईआरटी का पहला 5 सेंटेंस क्लोज्ड। देख, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। This is carrying oxygenated blood towards the fetus. So this is the umbilical vein. Just like pulmonary artery and pulmonary vein. And this is away from the fetal heart. So umbilical artery. Although carrying deoxygenated blood.
This is the chorionic villi forms syncytial trophoblast. ठीक? This is the intervillous space filled with maternal blood. This is the cytotrophoblast. Towards the fetus मैंने कहा. This is the uterine tissue. This is the uterine artery. उल्टा artery में normal case, oxygenated blood, uterine vein. And this syncytial trophoblast forms the layer of placenta, जिसको हम लोग कहते हैं decidua. Placenta is deciduate, so decidua basalis. This is A. This space forms B. Decidua capsularis. And this forms C. Decidua parietalis. So decidua parietalis is towards the fetus, and decidua basalis is towards the mother. Am I clear? ये है photograph. Without this photograph, पहले 4-5 लाइन सेंटेंस नहीं पढ़ता होगा. पर उमेश शुरू कर दो. पेज नंबर 53 या तो 37 प्लेसेंटा वाला पार्ट. ब्लड बैरियर कोई नहीं बना रहा है. दिस इज द कैपिलरी जिससे एक्सचेंज होगा. तो ये डिफ्यूजन होता है यहां से. समझ में आया? चल पढ़ शुरू कर. Finger-like projections appear on the trophoblast. ये बोलो. ये surrounded by the uterine tissue and the maternal blood. देखो uterine tissue and maternal blood. समझ में आया? चलो. This is the placenta. चलो. Facilitates. Diffusion. Mechanism is diffusion, and this barrier is called the transplacental barrier. इसी से बनता है transplacental barrier. है तो इतना तक रख. नेक्स्ट सेंटेंस एक बार पढ़. बोल. ओ हाँ, through an umbilical cord. ठीक है जी. That's it. कल हम लोग इसी का प्लेसेंटा का बाकी चीजें पढ़ेंगे. Am I clear? बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लेसेंटा का, वो कल पढ़ेंगे. समझ में आ गया? ध्यान से पढ़ना है इसको. ज्यादा नहीं पढ़ा है, उतना ही तक. हाँ, वो थोड़ा देख लेना. इंटरविला स्पेस दैट इज फिल्ड विद मैटरनल ब्लड. दोनों विलाई, कोरियोनिक विलाई, दोनों कोरियोनिक विलाई के बीच का जो स्पेस है दैट इज which is filled with maternal blood is called the intervillar space. समझा? Okay, online students. ठीक है. ये फोटोग्राफ, इसका सही से फोटो ले ले बेटा. सही से फोटो ले ले. और इसी जगह पे ये फोटो आज बना के, है ना, और रिक्वायर्ड पेन चेंज करके बना लेना, है ना. वो बना के फिर इधर चिपका देना.
ये इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है, पेज नंबर 53 या तो 37 में चिपका देना। किसी के मन में कोई भी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।